Hello 11th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous videos we have completed exercise 9.6 in which we have discussed different basic concepts of geometric progressions. When we have discussed how to find the nth term, how to find the sum of first n terms of GP. Now similar to the arithmetic mean, we'll discuss what is geometric mean. Students, as in case of AP we are having two terms and between these two terms we have found the arithmetic mean. Similar to that, in case of geometric GP also, if A, G, B means if we are having two numbers A and B and we are inserting a number between them, then this number and such that these three numbers are in GP. ठीक है, जैसे अगर हम अर्थमेटिक मीन में भी हमने कहा था, इफ वी आर इंसर्टिंग अर्थमेटिक मीन हियर देन द थ्री नंबर्स ए कैपिटल ए बी दैट वर इन AP in that case. Similarly, if we are inserting geometric mean between two numbers, then A, G, B, this is representing the geometric mean. These are in GP. Okay. And the main thing is that in case of arithmetic mean, we know that arithmetic mean equals to the sum of the numbers divided by 2. Okay. In case of geometric mean is the square root of the product of these two numbers. That means G is equals to root of AB. ठीक है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, A, G, B are in GP. That means G upon A equals to B upon G. उनका जो ईच टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ रेशियो जो है वो कॉमन होगा, G अपॉन A इक्वल्स टू B अपॉन G. तो यहाँ से G स्क्वायर इक्वल्स टू AB हो जाएगा. दैट मीन्स G इक्वल्स टू रूट AB. दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, अब जैसे हमने अर्थमेटिक मीन डिफरेंट नंबर्स के अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए थे बिटवीन टू नंबर्स, उसी तरीके से हम एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन A एंड B. Let us suppose we are to insert n geometric mean G1, G2 so on up to Gn between two numbers A and B. Then obviously A, G1, G2 so on up to Gn, B these are in GP. If these are in GP, so obviously the ratio of each term with the previous term will be equal and equals to the common ratio. Let us take the R be the common ratio. Now you can see that there are n geometric means and these two numbers total there are n plus 2 terms in the GP, and this B is the last n plus 2th term, and we know the formula for finding the nth term of the GP is AR to the power n minus 1. So here B is the n plus 2th term, that means it will be AR to the power n plus 1th term. Okay, and first term is A and common ratio is R, so obviously A R to the power n plus 1 equals to B here. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? R की वैल्यू. R will be equals to B upon A to the power 1 upon n plus 1. अब ये R की वैल्यू जो है वो हम पुट करते चलेंगे. G1 आपका क्या आएगा? सेकेंड टर्म है, it will be equals to A R, so it will be A B upon A to the power n plus 1. Similarly, G2 is the third term, it will be equals to AR square, and we can write A into R square, and value of R is B upon A to the power 1 upon n plus 1. Its square will be B upon A to the power 2 upon n plus 1. पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर की पावर, दैट मीन्स पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली अगर हम चलते चलेंगे तो जो आपका nth ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारी क्या है? nth टर्म है ना, n प्लस 1th टर्म है, सॉरी, है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी ये है और यहाँ से लेके ये n है, तो ऑब्वियसली ये Gn जो है ये n प्लस 1th टर्म है. n प्लस 1th टर्म है, दैट मीन्स ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? AR टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, दैट इज AR टू द पावर n. तो यहाँ पे अगेन हम R की वैल्यू पुट करेंगे B अपॉन A टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, और उसकी पावर हमें कितनी पुट करनी है? n. ठीक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 दैट विल बी n अपॉन n प्लस 1. इस तरीके से हम जो है n ज्योमेट्रिक मीन सभी हमें पता चल गए, सभी के लिए फॉर्मूला. तो इस तरीके से हम जो है ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये आपका जनरल मेथड है. यही मेथड पूरा कंप्लीट यूज करके हम अपने क्वेश्चंस
में अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेट अस discuss the first question of our exercise. Here in the first question, third part, we are discussing, we are to insert 5 geometric means between 1/3 and 9. Okay, so that means we are having the first and last number 1/3 and 9. Let us take the geometric means to be inserted are G1, G2, G3, G4, G5. We are to insert 5 geometric means, ठीक है। सो ऑब्वियसली द नंबर्स 1/3 एंड द ज्योमेट्रिक मीन्स G1, G2, G3, G4, G5 एंड द नंबर 9. दिस सीक्वेंस विल मेक अ GP, ठीक है। तो सेम ये जैसा हमने अभी डिस्कस किया, यही प्रोसेस हम यहाँ पे चलाएंगे। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे R, लेट R बी द कॉमन रेशियो। सो ऑब्वियसली ये जो है 5 ज्योमेट्रिक मीन्स है और 2 टर्म्स है, दैट मीन्स टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स होगी, 7 टर्म्स, ठीक है। n+2 हमने कहा था ना, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन 5 करना है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5, तो 5 + 2 हमारे पास टोटल 7 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी 7 टर्म है, दैट मीन्स AR⁶ वी आर हैविंग 1/3 × R⁶ इक्वल्स टू 9. दिस इज आवर 7th टर्म इक्वल्स टू 9. तो यहाँ से हम R⁶ इक्वल्स टू ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 ये इसको हम क्या पुट कर सकते हैं 3⁻3, ठीक है ना। हमें पावर कितनी चाहिए 6 चाहिए, तो हम क्या करें पावर 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3⁻1/2 ⁶, ठीक है। दैट मीन्स वी आर हैविंग √3⁶. सो आफ्टर कंपेयरिंग यू कैन सी R इक्वल्स टू √3. R की वैल्यू आने के बाद हम ये R की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं और डिफरेंट जो आपके 5 ज्योमेट्रिक मीन्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. G1 इज द सेकेंड टर्म, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू AR. Value of A is 1/3 and value of R is √3. So we'll put the both of the values and we get the first geometric mean 1/√3. Similarly, second geometric mean it is the third term of the GP. So it will be AR². ठीक है, अगेन हम A की और R की वैल्यू पुट करेंगे and we get the G2 1. Similarly, हम G3, G4, G5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, that will come to be √3, 3 and 3√3. Now there are some other important things. Let's discuss them also. If G1 is the first of n geometric means हमारे पास total n geometric means है between A and B, और G1 is the first geometric mean, then G1 to the power n+1 equals to A to the power n into B, ठीक है। जनरली अगर हमें A और B और G1 के बीच में रिलेशन निकालना होता है तो हमारा ये होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने निकाला था G1 क्या है A × B/A to the power 1/n+1 एंड G1 is AR. तो ये चीज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं A × B/A to the power 1/n+1. अब यहाँ पे बोथ हैंड साइड हम पावर, हमें देखिए क्या प्रूव करना है n+1, पावर n+1 करेंगे तो यहाँ पावर की पावर करेंगे तो n+1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगी. वी आर रिमेनिंग विद A × B/A. तो यहाँ से A to the power n+1 × B/A. तो यहाँ से हमें देखिए A की पावर 1 लेस हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर में पावर है रिवर्स होके रेसिप्रोकल होके पावर -1 हो जाएगी. तो वी आर हैविंग A to the power n+1 -1 दैट इज A to the power n इंटू यहाँ पे देखिए B की पावर 1 रह जाएगी. तो वी आर हैविंग G1 to the power n+1 इक्वल्स टू A to the power n इंटू B. नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स. ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है, सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, सभी की हमें रिलेशन से वैल्यू पता चल चुकी है. A × B/A to the power 1/n+1, G2 is A/B/A, A × B/A to the power 2/n+1. ठीक है, Gn आपका ये है. ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पे डालेंगे. यहाँ पे देखिए n ज्योमेट्रिक मीन्स है तो A कितनी बार रिपीट हो रहा है n टाइम्स. सो वी आर हैविंग A to the power n हेयर. यहाँ पे देखिए सभी में B/A है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी. तो B/A to the power 1 + 2 + 3 + so on. अब सभी का एलसीएम हम n+1 लेके ऊपर आपका देखिए ये n नेचुरल नंबर्स का सम है. तो अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP वी आर हैविंग first term 1 and common difference 1. So sum of these term will be n × n+1/2.
So we can put, and in the denominator we are having n plus 1. So this n plus 1 get cancelled and we are having a to the power n into b upon a to the power n by 2 here. ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, a टू दी पावर हाफ किया हमने और b टू दी पावर हाफ किया. ऐसा क्यों किया, देखिए ये a टू दी पावर n है, नीचे a टू दी पावर n बाई 2 है, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, वी आर हैविंग, देखिए बेस सेम है और डिवाइड होते वक्त पावर सब्ट्रैक्ट होती है. तो a टू दी पावर n माइनस n बाई 2, तो n बाई 2 रह जाएगी. यहाँ पे b की पावर भी n बाई 2 है, तो ये जो 1 बाई 2 पावर है ये हमने इनसाइड ले ली और पावर n बाहर रह गई. तो ये हमारा क्या हो गया, रूट ए बी टू दी पावर n. और रूट ए बी हमारी क्या है, nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, है ना. रूट ए बी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन a एंड b, ये हमने अभी डिस्कस किया था. तो ये रूट ए बी को हम ज्योमेट्रिक मीन मानते हैं बिटवीन a b एंड दिस इज द nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन. सो इफ वी आर टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, this is always equals to the nth power of the single geometric mean between the two numbers. जैसे हमने अर्थमेटिक मीन के केस में किया था, जो सम था हमारा, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन always equals to the n times the single arithmetic mean between the numbers. Okay, तो यही अब हम उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बात करते हैं. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. लेट अस रिप्रेजेंट द अर्थमेटिक मीन बाय कैपिटल ए एंड ज्योमेट्रिक मीन बाय कैपिटल जी बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी. देन ऑब्वियसली हमें चेक करना है ए इज ग्रेटर देन जी. अब ये कैसे करते हैं, देखिए हम लेट ए बी द अर्थमेटिक मीन, जी बी द ज्योमेट्रिक मीन. अब हमारा रिलेशन क्या है, ए जो है अर्थमेटिक मीन दोनों के सम अपॉन 2 और ज्योमेट्रिक मीन रूट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट का रूट. अब यहाँ से ए दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं, ए माइनस जी, दैट विल बी ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट ए बी. तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2. देखिए ये हम क्या आ गया, ये हमारा रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नीचे भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. दैट मीन्स ए माइनस जी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, है ना. ग्रेटर देन 0 आ गया, दैट मीन्स ए जो है ऑब्वियसली जी से ग्रेटर है. ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप है कि अगर हमें दो नंबर्स हैं तो उनके बीच का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा. दिस इज द रिलेशनशिप. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, 1 मार्क क्वेश्चन में आपका आ सकता है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दैट नंबर्स. ओके, इन पर्टिकुलर अगर हम a इक्वल्स टू b ले लें, है ना, ये नंबर्स डिस्टिंक्ट ले रहे थे हम, अगर ये डिस्टिंक्ट की बजाय अगर हमारे इक्वल आ जाए a इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये आपका 0 हो गया, है ना, 0 हो गया. दैट मीन्स इस केस में आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, इक्वल हो गया. Thus in general, if a and g are the arithmetic mean and geometric mean between two positive real numbers, then a is greater than equals to g. ग्रेटर देन तो हमारा किस केस में होगा, जब a एंड b डिस्टिंक्ट हैं. ठीक है, इक्वल किस केस में होगा, जब a और b डिस्टिंक्ट नहीं है. ठीक है, अगर सिंगल नंबर है तो हमारा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हो जाए. तो एक ही रिलेशन आता है, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू द ज्योमेट्रिक mean. Now proceed to the other sums of our exercise. Next sum, let us take the fifth sum of the exercise. If the arithmetic mean and geometric mean between two numbers are in the ratio m ratio n, यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का, then prove that the numbers are in this ratio. ठीक है, let us take the two numbers b a and b. Then obviously arithmetic mean between them will be a plus b by 2 and geometric mean between them will be root a by b, root a b. ठीक है, तो obviously हमें क्या गिवन है, इनके अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बीच का रेशियो, दैट मीन्स इनके बीच का ये जो इनका जो रेशियो है ये दैट इज गिवन टू बी m रेशियो n. ठीक है, वी विल पुट दिस रेशियो इक्वल्स टू m रेशियो n. तो दोनों का हमारा जो डिफरेंस है ना, सॉरी दोनों की जो डिवीजन है, क्वोशिएंट जो है a प्लस बी बाय 2 रूट ए बी इक्वल्स टू m बाय n. तो इस टाइप के में देखिए अगर हम a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी हो जाए तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा. तो इस टाइप की हमारी जब भी टर्म्स आती हैं तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि हम ये वाली जो डिनोमिनेटर है ये
न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा। दोबारा से हम न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर लिखेंगे, ठीक है। मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है, इफ वी आर हैविंग x बाय y, ठीक है, तो अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल x बाय y इक्वल्स टू p बाय q अगर इस तरीके से है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे तब हमारा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी ऐसा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर। दिस इज आवर रिलेशन अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट डिविडेंडो रूल। बहुत ही सिंपल इजी कर देता है। और जनरली जब हमें जो है रेशियो फाइंड आउट करना होता है नंबर्स के बीच का, ठीक है, उनके बीच का आपको रिलेशन रेशियो की फॉर्म में दिया है और रेशियो की फॉर्म में ही आपसे आंसर पूछा है, तो हम जनरली यही रूल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस टू रूट बी अपॉन a प्लस बी माइनस टू रूट बी, इधर से m प्लस एन अपॉन m माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं हम, ये क्या हो गया, रूट a प्लस रूट बी होल स्क्वायर, ये रूट a माइनस रूट बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस वन एन अपॉन m माइनस। अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं बोथ हैंड साइड, रूट a प्लस रूट बी अपॉन रूट a माइनस बी रूट बी इक्वल्स टू रूट m प्लस एन अपॉन रूट m माइनस एन। अब आप इधर से देखिए, अगर हम ये जो डिनोमिनेटर है ये इसमें ऐड करें तो एक बार b कैंसिल हो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बार a कैंसिल हो जाए, तो ऑब्वियसली अगेन हम क्या लगा सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अगेन लगाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट a माइनस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट a प्लस रूट बी माइनस रूट a प्लस रूट बी, ठीक है। इधर से रूट ऑफ m प्लस एन प्लस रूट ऑफ m माइनस एन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m प्लस वन माइनस रूट ऑफ m माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ रूट a अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट बी। ये जो आपके प्लस माइनस वाले जो अपोजिट साइन वाली चीज थी ये कैंसिल हो गई, यहाँ से ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमारे पास रूट ऑफ a बाय बी इक्वल्स टू दिस आ गया। हमें तो रेशियो ही चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, बोथ हैंड साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड हमने कर दिया है, तो वी आर हैविंग a अपॉन बी इक्वल्स टू रूट ऑफ m प्लस वन प्लस रूट ऑफ m माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ m प्लस वन माइनस रूट ऑफ m माइनस वन होल स्क्वायर। यहाँ बोथ हैंड साइड हम होल स्क्वायर खोल देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो देखिए यहाँ से m कैंसिल, डिनोमिनेटर में से भी m कैंसिल, वी आर हैविंग ट्वाइस ऑफ m प्लस रूट ऑफ m माइनस n स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m माइनस ट्वाइस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूल जो है वो लग गया है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं a रेशियो b इक्वल्स टू m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशियो m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हेंस द रिजल्ट। नाउ इन द सिक्स्थ क्वेश्चन we are given if a b c are in AP, a b c are AP में है तो ऑब्वियसली AP में है तो b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, तो वहां से आपके पास हो जाएगा 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन गिवन हो गया है। ऑल्सो वी आर गिवन x इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, दैट मीन्स x इक्वल्स टू रूट ए बी, एंड y ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन b एंड c, दैट मीन्स y इक्वल्स टू रूट बी सी। तो ये चीज हमारे पास गिवन होगी, x इक्वल टू रूट ए बी एंड y इक्वल्स टू रूट बी सी। ये चीज, ये थ्री इक्वेशन हमारी जो गिवन है उससे आ गई। अब हमें प्रूव क्या करना है, बी स्क्वायर इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो हम चेक करते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो हम वही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ से b कॉमन आके a प्लस सी। अब a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से है 2b, तो यहाँ पे हमने a प्लस जी की जगह 2b पुट कर लिया। वी आर हैविंग 2b स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बोथ हैंड साइड 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू b स्क्वायर। ऑब्वियसली दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, दैट मीन्स b स्क्वायर इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। In the seventh question,
we are given if G is the geometric mean between A and B, then show that 1 upon G square minus A square plus 1 upon G square minus B square equals to 1 upon G square. So obviously student, we are given G is geometric mean between A and B, that means G equals to root of AB. Squaring both hand side, we are having value of G square equals to AB. Now we can put this value of G square in our given left hand side. ठीक है, and after solving we will check is it equal to the right hand side or not. So let us take the left hand side. 1 upon G square की वैल्यू हम पुट करते हैं AB. ओके, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं. जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वी आर हैविंग जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास आ गया 2g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब जी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं ए बी. तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ से देखिए ए बी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए बी माइनस बी स्क्वायर. इन दोनों में से ए कॉमन, इन दोनों में से बी कॉमन. अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, वी आर हैविंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. दिस इज द ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आइडेंटिटी है हमारे पास. यहाँ पे देखिए हम जो b माइनस ए है, यहाँ a माइनस बी है, तो इसमें से हम माइनस बाहर ले लेते हैं. वी आर हैविंग माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी ए माइनस बी. अब a माइनस बी आपका 2 टाइम आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर नीचे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट. ए बी है डिनोमिनेटर में. वी आर हैविंग माइनस माइनस ऑल्सो कैंसिल फ्रॉम द न्यूमरेटर. वी आर रिमेनिंग विद 1 अपॉन ए बी एंड ए बी इज नथिंग बट जी स्क्वायर. So we are having left hand side equals to 1 upon g square, that is our required right hand side, and hence the result. So I hope students you understood all the sums. For today your homework is to complete exercise 9.7 in your pair notebook. If any problem still left, you can ask in your doubt session, or you can come to the school and clear your doubts. Thank you. Have a nice day.